not things to be molded, but people to be unfolded. Well said by Jasla. Good morning, everyone. It is my honor to welcome our Chief Guest, Mr. Kiran Singh sir, his better half, Mrs. Ragini Singh ma'am, our Managing Trustee Shah sir, Mr. Chitrang Patel, Vice Principal of Amicus International School, Pramesh ma'am, Campus Director Prakash sir, all the dignitaries on and off the dais, and all my dear friends. To today's meaningful learning session based on a thought-provoking theme, modern schooling put on trial, inspired by the life and works of visionary American educator John Hall. Hall believed that children are naturally curious and learn best in a joyful, trusting environment, not through fear or pressure, but through freedom, exploration, and real life experiences. Today, we reflect on how education can truly serve children, not just as students but as lifelong learners. To begin our program on a positive and peaceful note, let us invoke blessing. I request our music teacher Dhanashri ma'am to grace this gathering with a prayer. Please, ma'am. सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है धरती पर स्वर बसा लेना धरती पर स्वर बसा लेना वो मानव तुझ पर निर्भर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है तू दीप से दीप जलाता चल तू सबको गले लगाता चल तू प्रेम एकता शांति सत्य सहयोग के रत्न लुटाता चल गुण ही गुण भरे पड़े तुझ में अंतर तेरा रत्नाकर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है नदी ना अपना जल पीती है पेड़ ना अपने फल खाते हैं नदी ना अपना जल पीती है पेड़ ना अपने फल खाते हैं पर उपकार के लिए हम ये अनमोल जन्म पाते जो पर दुख को अपना माने वो मानव देश से बढ़कर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है कोई हीरा है कोई पत्थर है कोई हीरा है कोई पत्थर है Leading us with such a beautiful and soulful prayer. It is a
are privileged to have with us a visionary in the field of education, Mr. Kiran Singhod, a respected and inspiring leader. He is the chairperson of Nutan Bal Shikshan Sangh, Vadodara branch. To introduce our distinguished guest, I request Manisha ma'am to please come forward and share a few words. On the dais and my dear friends. On the occasion of Teachers Training Program on Modern Schooling Put on Trial, based on the life and works of American educationist John Hall, it gives me immense pleasure to introduce our distinguished chief guest for the day, Dr. Kiran Shinglod. Dr. Shinglod is a family care physician and pediatrician currently serving as an honorary physician at the Indian Red Cross Society, Vadodara branch and at the Ambalal Sarabhai Foundation, Vadodara. He has had a long and distinguished medical career, having retired as the in-charge Chief Medical Officer from the MS University of Baroda's University Health Center after serving there with dedication from 1985 to 2013. These areas of expertise go far beyond traditional medicine. Dr. Shinglod is a practitioner in mind-body healing and a counselor of behavioral problems in children and adolescents. He also teaches several transformative subjects including hypnotherapy, self-hypnosis, yoga philosophy and practice, mind-body relationship, neuro-linguistic programming, transactional analysis, stress management, and healthy parenting practices. He currently serves as the Honorary Director of Yog Niketan Fatehganj and Chairperson of Nutan Bal Shikshan Sangh, Vadodara branch. His passionate work reflects his deep sense of social responsibility and commitment to community well-being. Since 1985, Dr. Shinglod has been offering voluntary services as a medical resource person in tribal healthcare in the Panchmahal district through the Rural Development Society, Panelau Taluka Halol, Gujarat. His dedicated involvement has helped promote health awareness, preventive care, and medical accessibility in rural areas. Continuing his noble mission since 2001, he has also been associated with the Bhasha Research and Publication Center, Vadodara, where he extends similar voluntary services in Chhotaudepur district. Through these long-standing initiatives, he has worked tirelessly the quality of life of tribal communities, reflecting the true spirit of compassion and service. A prolific writer and editor, Dr. Shinglod has authored and translated around 26 books, and his insightful articles on health, parenting, children's education, mental well-being, and meaningful living have been featured in leading Gujarati magazines. He also serves as the editor of Apnu Swasthya, a monthly health bulletin, and Balmurti, a Gujarati magazine. Focused on parenting. Some of the notable titles of his books are Jare Doctor Na Hoy, Arogya Sakhi, Tame અને તમારું બાળક, બાળકો નિષ્ફળતાથી નીવડે છે, બાળકો શી રીતે શીખે છે, હું ફળાહારથી જીવું છું. And the book બાળક નિષ્ફળતાથી નીવડે છે is currently available in our library. His journey embodies empathy, knowledge, and lifelong dedication to human development, qualities that align beautifully with today's theme, modern schooling put on trial, inspired by the educational vision of John Hall, who emphasized curiosity, self-directed learning, and the human side of education. Let us all extend a warm and respectful welcome to Dr. Kiran Shinglod, since today is an inspiration and a guiding light for our collective journey towards more meaningful education. So now, I request Pramesh ma'am to welcome our today's chief guest, Dr. Kiran Shinglod sir.
the better half of Dr. Shiglos sir. Introducing our esteemed guest so gracefully. Education is not just about learning facts. It is about opening minds, inspiring curiosity, and nurturing potential. We are honored to have with us a leader who truly embodies these ideas. I now invite Mr. Kiran Singh Lok sir to enlighten us with such inspiring session. इस व्यवस्था को मैं पसंद नहीं करता क्योंकि वर्गखंड व्यवस्था है। आप सब कुर्सी पर नीचे बैठे हो, मैं ऊपर बैठा हूँ। इससे सीखने में अवरोध पैदा होता है। जो विषय लेकर मैं आज आया हूँ बहुत संवेदनशील है, वेरी सेंसिटिव और बहुत विवादास्पद, वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। मैं जो बोलने वाला हूँ उसकी पूर्व भूमिका 5 मुद्दों में आपको बांध देता हूँ। हो सकता है आप मेरे से असहमत भी हो सकते हो, मेरे को गुस्सा भी आ सकता है शायद, तो आप मुझे डांट सकते हो। पहला, मैं मनुष्य ने अपने विकास में सामाजिक व्यवस्था पैदा की और जो भी सामाजिक तंत्र बनाए उसका उग्र विरोधी हूँ। हमारी समाज रचना लगभग 12,000 साल पुरानी है। इसमें हमने बहुत सारे विकास किए, जैसे कि अर्थव्यवस्था पैदा की गई, कुटुंब व्यवस्था पैदा की गई, नौकरी करने की मजबूरी हमारे पर डाली गई, नीति नियम कानून हमारे पर डाले गए, बहुत सारी व्यवस्थाएं पैदा की। अंतिम व्यवस्था एजुकेशन, शिक्षण व्यवस्था, मैं सबका उग्र विरोधी हूँ। मैं आपको 2 चलचित्रों का नाम बोलना चाहूँगा। एक है द गॉड मस्ट बी क्रेजी, बहुत अच्छा मूवी है। प्राणी समाज देखो, आदिवासी समाज देखो, इनके साथ मैं कई सालों से काम करता हूँ। और मनुष्य, सभ्य मनुष्य का समाज देखो, तो हम सब दुखी हैं, मिजरेबल, पीड़ित है, कितने टेंशन में जी रहे हैं हम सब। इसका कारण हमारी समाज व्यवस्था है और यही अभिशाप हमने बच्चों को भी दे दिया स्कूल बनाकर। मेरा घर बस होता है तो मैं सभी शिक्षण व्यवस्था, स्कूल, शिक्षक, वास्तव में मैं कनाडा के एक बहुत महान फिजिशियन डॉक्टर विलियम ऑस्लर, वो कहते थे कि मनुष्य जाति के जितने औषध बनाए, दवाइयाँ बनाई, नॉट ओनली मॉडर्न मेडिसिन, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, सबको अगर दरिया में फेंक देता तो आदमी कितना, मनुष्य का कितना भला होता है और मछलियों का कितना बुरा होता है। उसी वाक्य को बदलकर मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जितनी शिक्षा में बनाई वो अगर दरिया में हम फेंक देते, समुद्र में फेंक देते, तो बच्चों का कितना भला होता और तुम्हारा और मेरा पेट नहीं भरता, है ना। क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, मेरा और आपका स्थापित हित है। पेट भरना है मुझे, इसलिए मुझे नौकरी करना है, टीचर बनना है। तो ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है कि ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न नेचुरल लर्नर्स। किसी को सिखाने की क्षमता विकास करने के लिए कोई थर्ड एजेंसी चाहिए नहीं, शिक्षक ना चाहिए, स्कूल ना चाहिए, ना आपको एजुकेशनल सिस्टम चाहिए, ना अभ्यासक्रम चाहिए, कोई ज़रूरी है ही नहीं। क्योंकि मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ, इसलिए मैं बच्चों को देखता हूँ। पिछले सबसे पहले 2 सालों में
बच्चा जो भी सीखता है वो अपनी नीयत से सीखता है, अपनी बुद्धि से सीखता है। आप तो सम्मत हो मेरे से, है ना? तो बच्चा अपने आप जितना सीखता है, क्योंकि पहले 2 सालों में वायरिंग होता है, वायरिंग ऑफ द ब्रेन सेल्स। उसके लिए बच्चे को कुदरत ने 5 ज्ञानेंद्रियाँ दी, दिमाग दिया और तार से जोड़े गए। तो वायरिंग पहले 2 सालों में जो वायरिंग होता है वो रिन्यूएबल मगज में कैपेसिटी है, उसका नाम है न्यूरोप्लास्टिसिटी। योर ब्रेन इज ए मोल्डेबल ऑर्गन, फ्लेक्सिबल ऑर्गन, डेवलपिंग ऑर्गन, सेल्फ लर्निंग ऑर्गन। आपके शरीर में बहुत सारे अवयव हैं, लेकिन सब अवयव जैसे बने वैसे के वैसे रहते हैं। एक ब्रेन है कि जो सतत डेवलपमेंट करता रहता है और वो अपने हिसाब से करता है, लेकिन जब उसमें बाहर ऊपर से कोई एजेंसी डाली जाती है तो ब्रेन डेवलपमेंट सप्रेस हो जाता है। मतलब कि टीचर का रोल मुझे जरूरी नहीं लगता। तो ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न नेचुरल लर्नर्स। चौथा मुद्दा है कि स्कूल टीचर्स, मतलब मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं आलोचक दृष्टि से देखूंगा। तो शिक्षक और स्कूल बच्चों के दिमाग को, मानसिकता को कैसे नुकसान करते हैं, उसके लिए मैं जॉन हॉल्ट, अमेरिका के बहुत बड़े शिक्षण शास्त्री थे, ये 5वीं कक्षा में मैथमेटिक्स पढ़ाते थे और पढ़ाते पढ़ाते वो बच्चों को अवलोकन करते थे, एक नोट बनाते थे। उसी नोट का भाषांतर मैंने किया। उन्होंने बहुत सारे काम लिखे, जैसे कि हाउ चिल्ड्रन फेल, हाउ चिल्ड्रन लर्न, बहुत सारी किताबें लिखी हुई है। सबसे मुझे अच्छी लगी है द अंडर अचीविंग स्कूल। इसका भी भाषांतर मुझे कभी करना है। अंडर अचीविंग स्कूल, बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी, तो उनका आधार लेकर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। पहले 2 वाली किताबों का गुजराती मैंने किया हुआ है, लगभग 90 के दशक में, तो उसी का सहारा लेकर मैं कुछ बात आपको करने जा रहा हूँ। ऑल लर्निंग इज सेल्फ लर्निंग। 2 शब्दों में मैं तफावत बनाना चाहूँगा, एजुकेशन एंड लर्निंग। जब मैं यहाँ खड़े रहकर आपको पढ़ाता हूँ तो एजुकेशन हो जाता है। इससे आपके दिमाग का फिक्स्ड वायरिंग होता है। मैं जो चाहता हूँ ऐसे आपके दिमाग को घटर करना चाहता हूँ, वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे को अपने दिमाग से पढ़ने दीजिए। बच्चे की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? मैंने मेरे पिताजी से फरियाद किया था कि तुमने मुझे मेरा नाम पसंद नहीं करने दिया, मुझे पूछकर मेरा नाम रखना चाहिए। मैं 11वें दिन का था, मेरा नाम रख दिया उन्होंने। अब मैं उसको बदल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सरकार ने मुझे सिटीजन बना दिया, आधार कार्ड पर मेरा थप्पा मार दिया। अब मेरा नाम नहीं बदल सकता मैं, है ना? नाम में बहुत सारा बदलना चाहता हूँ मैं, लेकिन बच्चा अपना नाम नहीं बदल सकता। बच्चा अपने माता पिता भी पसंद नहीं करते। मैं 2 व्यक्तियों का नाम लेना चाहूँगा। एडोल्फ हिटलर, उनके पिता बहुत खराब थे, तभी ये इतना आतंकवादी हुआ, है ना? कितना दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने कितना संहार किया, मानव संहार, 6 मिलियन। तो ये इसलिए कि उनके पिताजी बहुत खराब थे। दूसरे लेखक फ्रांज काफ्का, जर्मन के ही, उनके भी पिता बहुत खराब थे। वो अपने माँ बाप को बदल नहीं पाए। मैं और आप अपने माँ बाप को बदल नहीं पाए। मैं उनकी अपेक्षाओं का बोझ लेकर जी रहा हूँ। आप भी सब जी रहे हो।
सब बच्चे अपने माँ बाप के अपेक्षाओं का बोझ लेकर जी रहे हैं, उनको बदल नहीं पा रहे हैं। और बच्चों को टीचर्स पसंद करने की भी स्वतंत्रता नहीं, माँ बाप तय करेंगे कौन किस स्कूल में रखेंगे आपको, है ना। तो बच्चों की ये कमजोरियाँ हैं। अब शिक्षक की मर्यादा पहले बताता हूँ। जॉन हॉल के अनुसार किसी एक विषय को मैं सीखता हूँ। सीखने का मतलब ये होता है कि जो विषय मुझे पढ़ाया गया उसका एक मानचित्र बनता है, मेंटल मैप। यहाँ पर मेरे कान के पीछे चेताकोषों का एक समूह है जहाँ पर उस विषय की छाप बन जाती है। मेरे जीवन के अनुभवों की भी एक छाप बनती है यहाँ पर। आपसे कैसे वर्तन हुआ, आपने मेरे साथ कैसे वर्तन किया, मेरा जीवन कैसे बीता, मैंने क्या चीज़ें सीखी, क्लासरूम में मुझे क्या पढ़ाया गया, तो एक मेंटल मैप बनता है। अब उसी मेंटल मैप को जैसे कि सीखा था मेडिकल कॉलेज में मैंने अभ्यास किया, तो मैंने एक मेंटल मैप ह्यूमन बॉडी के बारे में, बीमारियों के बारे में बना लिया। अब इसके बाद अगर यही विषय मुझे किसी और को पढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ चुने हुए शब्द हैं। मेरे मेंटल मैप को मैं किसी चुने हुए शब्दों में डालूंगा और आपको वो विषय समझाऊंगा, जैसे अब मैं कर रहा हूँ, है ना। तो मेरी कमजोरी क्या है कि मेरा मैप कैसा बना है, उसको शब्दों में मैं कैसे डाल रहा हूँ और आपको कैसे समझा रहा हूँ। तो आप किसी एक विषय को सीख कर आते हो, आपने पीटीसी किया, बीएड किया, एमएड किया, आपने सीख लिया, एक मैप बन गया। अब वो मैप लेकर आप यहाँ आए और बच्चों को आप अपनी भाषा में, अपने शब्दों में डालकर वही विषय सिखा रहे हो। जैसे कि मेरे जीवन का कोई अनुभव होगा तो मैं आपको कैसे समझा पाऊँगा, है ना। बहुत मुश्किल है ये काम। तो आपको लगता है कि टीचिंग इज ए सिंपल जॉब, इज ए गुड जॉब? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो मेंटल मैप बच्चा अपने आप तैयार करना चाहिए, खुद को सीखना चाहिए। जैसे कि हमारा वेद लिखे गए, सब वेदों में लिखे गए श्लोकों को बदलने की तुमको अनुमति नहीं। टेक्स्ट बुक में जो लिखा गया वो तुमको बदलने की अनुमति दे, है ना। 2 + 2 = क्या जवाब दी क्या? नहीं, 2 + 2 = not 4, नहीं हो सकता। मैं मिला था एक बहुत महान लेखक को जो स्पेनिश पादरी थे, फादर वाले, कभी मिला था। पहली बार जब मैं मिला, वो गणित के विज्ञान के शिक्षक थे। उन्होंने मुझे ये सवाल पूछा कि 2 + 2 = तो मैं थोड़ा सोचने लगा कि क्या जवाब दूँ। तो बोले कि इतना भी स्कूल में नहीं सिखाया तुमको 2 + 2 = तो मैंने सोचा कि मैंने बोला कि सर, मैं आपको 4 जवाब देना नहीं चाहता। मैं 1000 बोल सकता हूँ, 2000 बोल सकता हूँ, 500 बोल सकता हूँ, है ना। मतलब कि आप चुना हुआ जवाब बच्चों से चाहते हो। जब परीक्षा में आप परीक्षा वही चेक करते हो तो बच्चों से क्या अपेक्षा रखोगे? 2 + 2 = 4। तो सही जवाब 1 मार्क दे दिया, वो आपकी गलती है। शब्दों में बांधकर जो विद्या आप सिखाते हो सब जॉन हॉल के विधान है। एक्सप्लेनिंग डज नॉट इंक्रीज द अंडरस्टैंडिंग एंड दे विल लिसन इट। बच्चे समझ नहीं पाएगा आपकी भाषा को, तो आपको क्या करना चाहिए? लर्निंग इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग, लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिविटी ऑफ द लर्नर। मतलब कि मैं बोलूँगा, आप सिर्फ सुनेंगे और आप सीखेंगे, वो मेरी गलती है। मुझे विषय आपको दे देना चाहिए, आपके हाथों में देना चाहिए। आप खुद पढ़िए। जैसे कि मेडिकल कॉलेज में कई बार हमको डिसेक्शन के लिए टेबल पर बिठाया जाता था, कोई इंस्ट्रक्टर आते नहीं थे, डेमोन्स्ट्रेटर आते नहीं थे। वो बोलते थे तुम खोलो अपने आप और जो भी देखो वो क्या चीज़ है तुमको खुद को पहचानना होगा। तो वो पहचान मैं आज भी भूल नहीं पाया हूँ। किसी ने मुझे बताया नहीं,
कि ये कौन सा आर्टरी है, कौन सा वेन है, कौन सा नर्व है, कौन सा ऑर्गन है। मैंने वो अवयव देखा और इसको फिर जो बार बार देखता रहा, मेरे दिमाग में उसकी छाप बनती रही, मेरा खुद का मेंटल मैप बना। तब इस विद्या को मैं, क्योंकि 75 में मैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा, आज तक भूल नहीं पाया हूँ। तो पढ़ाने का ये सही तरीका है। कुछ गलतियाँ शिक्षकों की होती है, आपके लिए पढ़ने के लिए छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले चिल्ड्रन हैव स्कूल, जैसे कि पहली कक्षा में जब मुझे भर्ती किया गया था, तो मेरे शिक्षक के पास रखते हुए मेरे पिताजी ने बोला, मैं आपको एक कोरी स्लेट दे रहा हूँ, और ब्लैंक स्लेट, अब इसके ऊपर लिखना तुम्हारा काम है। मतलब कि चिल्ड्रन हैव नो स्किल, नो इंटेलिजेंस एंड नो एबिलिटीज। आपको इसके ऊपर प्रोग्रामिंग करना है, क्योंकि एक कंप्यूटर है। ब्रेन इज लाइक अ कंप्यूटर, योर ब्रेन इज कंपेयर्ड टू अ कंप्यूटर। एक ब्लैंक कंप्यूटर मेरे घर में जन्म लिया, तो इसका प्रोग्रामिंग मुझे करना है। इसी तरह एक कंप्यूटर आपके स्कूल में अगर एडमिशन ले लिया, तो उसका प्रोग्रामिंग आपको करना है। मतलब आप उसमें क्या सॉफ्टवेयर डालेंगे, जो सॉफ्टवेयर डालेंगे वो बच्चा बदल नहीं पाएगा, नया सीख नहीं पाएगा। गणित में सिखाओ, भाषा में सिखाओ, समाज विद्या में सिखाओ, विज्ञान में सिखाओ, वो सब परमानेंट प्रोग्राम बन जाता है। तो ऐसा प्रोग्रामिंग नहीं करना है। तो ये हमारी, और सबसे बड़ा मेरे एक शिक्षक थे चौथी कक्षा में, वो कहते हैं कि सभी बच्चे शैतान हैं। उनको ठीक करने के लिए क्या क्या साधन उपयोग करेंगे आप? छोटी मांगे चमचम, मैंने विद्या आवे धम धम, मतलब मारा जाता था हमको, है ना। तो चिल्ड्रन आर मॉन्स्टर्स ऑफ इविल हू मस्ट बी बीटन अप इनटू सबमिशन। मतलब कि बच्चों को आज्ञानिक बनाना है। तो बच्चों को मेरे ज़माने में बैठने का ढंग कैसा होता था, बेंच नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मैं देवगढ़ बारिया में पढ़ा हूँ, आवा डांग में पढ़ा हूँ, व्यारा में पढ़ा हूँ। जमीन पर बिठाया जाता था। जब शिक्षक अंदर आते तो पलाटी मारो, हाथ बंद करो और नाक पर हाथ। तो जब तक शिक्षक बोलेंगे तब तक आप बिल्कुल भी बोलेंगे नहीं, एक भी शब्द बोलना नहीं, है ना। तो वास्तव में किसको बोलना चाहिए? बच्चों को बोलना चाहिए, शिक्षक को चुप रहना चाहिए। तो मॉन्स्टर तो बीवी, ऑल चिल्ड्रन आर बॉर्न लर्नर। जैसे कि मैं बच्चों की कुछ क्षमताएं बताना चाहूँगा। प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। एक गलती क्या है हमारी, प्री एजम्पशन, कि मुझे स्कूल में क्यों भर्ती किया गया, कॉलेज में क्यों भर्ती किया गया, कि 25 साल तक में मुझे विद्याभ्यास पूरा करना है, एक डिग्री कमाना है ना, बोर्ड का सर्टिफिकेट लेना है। अब अभ्यास पूरा करने के बाद मुझे अब नौकरी करने की छूट मिलेगी, शादी करने की छूट मिलेगी, कुटुंब बनाने की छूट मिलेगी, मकान लेने की छूट मिलेगी। 25 साल तक में मुझे मेरा एजुकेशन पूरा कर देना चाहिए। आप सम्मत हो? लर्निंग कब शुरू होना चाहिए, कब पूरा होना चाहिए? हाँ, इट इज एन एंडलेस प्रोसेस, इट इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। कब शुरू होता है सीखने का? बच्चा जब माँ के पेट में होता है। अभिमन्यु का कहानी देखो, तब से शुरू हो जाता है। जन्म के बाद बच्चा अपने पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करने लगता है, सीखने लगता है। और पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग, अभी मैं आपके किसी शिक्षक से बात कर रहा था कि बच्चों को योग सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। नहीं, योग में एक अंग हम सिखाते हैं, उसका नाम है प्रत्याहार। मतलब कि आपको भीतर उतरना है तो आंखें बंद करो, कान बंद करो, है ना, ज्ञानेंद्रियों को बंद करो। लेकिन बच्चों को ज्ञानेंद्रियां बंद मत कराना, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां मेरी सीखने के साधन है। उसको मैं बंद करूँगा नहीं, कभी बंद कराऊंगा नहीं। बच्चों की ज्ञानेंद्रियां हमेशा खुली रहनी चाहिए। किसकी बंद रहनी चाहिए? तुम्हारी और मेरी, क्योंकि हम सब व्यग्र हैं, परेशान हैं, दुखी है ना, चिंताग्रस्त है।
दिमाग में विचारों की बहुत भीड़ जमी हुई है, हम निर्दोष नहीं रह पाए। तो मेरी इंद्रियों को बंद करो, तुम्हारी इंद्रियों को बंद करो, बच्चों को तो इंद्रियों उपयोग करने दो। तो ऑल लर्निंग इज एसेंशियल इन सेल्फ लर्निंग एंड लर्निंग डज नॉट अकर इन स्कूल। क्लासरूम में स्कूल मतलब मैं एक और लेखक का नाम देना चाहूँगा जिनके काम से भी मैं बहुत प्रभावित था। वसीली सुखोमलिंस्की रशियन लेखक थे, रशियन शिक्षाकार थे। वो क्या कहते थे, शिक्षा कहाँ की जा सकती है? क्लासरूम में नहीं, बंद दरवाजे में नहीं। कहाँ ले जाओगे शिक्षा के लिए? बच्चों को कुदरत के पास ले जाओ, नदी किनारे ले जाओ, जंगल में ले जाओ, है ना। जैसे कि मुझे वर्तुल बताना है तो वर्तुल यहाँ दौड़ के बताऊंगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वसीली बोलते थे मेरे साथ आओ बाहर, हम देखेंगे। जैसे कि मुझे एक बार पूछा गया कि शंकु आकार की किसी चीज़ का नाम बोलो, मेरे मैथमेटिक्स के टीचर ने बोला भूमि दिखे। तो 15 मिनट तक मैं भौचक रह गया, जवाब नहीं दे पाया। तो मेरे शिक्षक ने मुझे बहुत डांटा। 15 मिनट के बाद वो किसी और विषय को सिखा रहे थे और एकदम मैं खड़ा हुआ और बोला कांटा। तब बोले अभी 15 मिनट के बाद जवाब कहाँ से लाए? तो मैंने बोला मैंने खिड़की से बाहर देखा और नीचे कांटा देखा, तो मुझे लगा ये शंकु आकार का होता है ना। वर्तुल, चौरस, शंकु आकार, 2+2 कितना होता है? जैसे कि सप्तर्षि कितने तारों का बना हुआ है, कैसा आकार बना हुआ है? तो कुदरत में ले जाओ। तो एक सीख मेरी ऐसी है, क्लासरूम में कम पढ़ाओ। सबसे बड़ी शिक्षिका कौन हो सकती है? नेचर। और दूसरा कौन हो सकता है? आपका खुद का जीवन, योर ओन लाइफ। मैं पढ़ते आकरते चोट खाते सीखता गया हूँ। किसी शिक्षक ने मुझे क्योंकि मेरी एक, अगर मेरी बातों से आप बोर हो तो मुझे बोल देना। मेरी एक कमजोरी रही कि मेरे पिताजी का हर 2 महीने में तबादला होता था, बदली हो जाती थी, ट्रांसफर। तो स्कूल नहीं, अभ्यासक्रम बदल जाता था उस जमाने में। अभी तो यूनिफॉर्म है, वो तो 2-2 महीने में नई स्कूल में जाओ तो टेक्स्ट बुक बदल जाती थी। तो मैं जब मार्च महीना आता था, बदली हो जाती उनकी, तो नई स्कूल में भर्ती करते। अब अगले महीने तो परीक्षा आने वाली है, तो पूरे साल का अभ्यासक्रम कौन सिखाएगा मुझे? उस जमाने में ट्यूशन था नहीं, तो कौन सिखाता था? मैं खुद सीखता था। तो जिंदगी ने मुझे ये अच्छी आदत डाली कि खुद सीखो, किसी शिक्षक का सहारा चाहिए नहीं। कहीं पर चित्र काम होता था, कहीं पर कातड़ वनाट होता था, है ना, कहीं पर वनाट भी करना पड़ता था, तो अलग अलग, कहीं पर संगीत भी होता था। तो हर एक विषय को मैं खुद सीखता था। तो लर्निंग कैन अकर एवरीवेयर एंड एनीवेयर, नॉट इन द क्लासरूम, नॉट इन द स्कूल। अब व्हाई डू वी कॉल चिल्ड्रन एज बॉर्न लर्नर्स? आप बच्चों की इन सब गुणों से परिचित हो? देख लीजिए। जैसे कि मैं 2 साल के बच्चे को जब भी देखता हूँ तो उसकी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होती, डेवलपिंग सेंसेस, पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन है, एब्जॉर्प्शन। मुझे कई बार पूछा जाता है कंसंट्रेशन के लिए आप मुझे हिप्नोसिस सिखाएंगे? तो मैं बोलता हूँ कि नहीं, हिप्नोसिस नहीं, बच्चों से सीखो कंसंट्रेशन। मनपसंद प्रवृत्ति में जब बच्चा दिमाग अंदर उतरता है तो आजू बाजू का भान बिल्कुल भूल जाता है। तो कंसंट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लिए बच्चों को ध्यान मत सिखाओ, बच्चों से आप सीखो। और बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता मुझे क्या लगती है कि जब मेरी गलती होती है तो मुझे डांटा जाता है। अगर आपकी गलती होगी तो मैं आपको डांटता हूँ, लेकिन बच्चे भूल करेंगे, लगातार भूल करेंगे, एंड दे लर्न फ्रॉम मिस्टेक एंड ऑपरेट सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस। जैसे कि मीनारा बनाया जाता है बच्चे को, 2 साल के बच्चे को मीनारा बनाने के लिए तो 5 बार गिरेगा, 6 बार गिरेगा, बच्चा सोचेगा कि क्यों गिर गया,
कैसे रखना चाहिए मुझे। तो 15 बार वो प्रयोग करेगा और सीखेगा कि कैसे रखने से ये टावर, ये मीनार, जो भी बोलो आप, अंग्रेजी में क्या कहते हो, ब्लॉक्स को, ब्लॉक्स की गेज को, हाँ, पिरामिड। तो पिरामिड बनाने वाले, जैसे कि बचपन में मेरे आसपास बहुत सारे लोग सिगरेट स्मोकिंग करते थे, तो उसका कार्टून फेंक देते थे, मैं इकट्ठा करता था, साथ में जोड़ता था, इससे कई सारी चीज़ें मैं बनाता था। वो टूटती थी, गिरती थी, तो मैं अपने आप को बोलता था ठोकर खानी चाहिए, भूल होनी चाहिए, इसी से तो मुझे सीखना है। जबकि आप बच्चा आपकी प्रश्न पत्र में भूल करेगा तो आप क्या करेंगे, एक लाल रंग की चौकड़ी लगाएंगे, तो आपकी सबसे बड़ी भूल है, ऐसा मत करना कभी। बच्चे में धीरज है, हिम्मत है सीखने की, मेरे और आपके अंदर नहीं है। इमिटेशन, क्योंकि ललाट के पीछे कोशों, चेताकोशों का एक समूह है, उसको कहा जाता है मिरर न्यूरॉन। मिरर, जैसे कि मेरी बच्ची, मैं जब था युवा तो मुझे देखती थी तो मेरी नकल करती थी, क्योंकि हम बंदरों से पैदा हुए हैं, है ना, वानर से नर बने, तो हमको मिरर न्यूरॉन्स मिले। तो बच्चा सिखाने से नहीं, बोलने से नहीं, आपको देखने से सीखेगा। माँ कैसे खाना पकाती है, कैसे सब्जी काटती है, मेरे पिताजी कैसे स्टेटोस को कान में डालते हैं, ब्लड प्रेशर कैसे लेते हैं, वाहन कैसे चलाते हैं, जूता कैसे पहनते हैं, है ना। तो बच्चा आपको देख के जो सीखता है वो आपके बोलने से नहीं सीखेगा, क्योंकि उसमें इमिटेशन, नकल होती है। पावरफुल इमेजिनेशन। आपको दो दिमाग बताओ, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। आपको पता है इसके बारे में, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। यहाँ पर मेरा लेफ्ट ब्रेन है, वो लॉजिकल, रीजनिंग, मैथमेटिकल, साइंटिफिक, मतलब 2+2=4 यहाँ पर छपा हुआ है मेंटल मैप में। लेकिन यहाँ है मेरा राइट ब्रेन। राइट ब्रेन इज इमेजिनेटिव। वो 2+2 मतलब 4 नहीं हो सकता, अलग जवाब आएगा, है ना। तो बच्चों में इमेजिनेटिव ब्रेन है। स्कूल क्या करती है कि बच्चों का इमेजिनेटिव ब्रेन मार डालता है, कुचल डालता है, हत्या कर देता है। मतलब हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा कंप्यूटर साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, है ना, BBA करे, डेंटिस्ट बने, फिजियोथेरापिस्ट बने। मतलब कि आपकी राइट ब्रेन को आप मार डालते हो। स्कूल में भी आप वही करते हो। मैं मेरे बच्चों को, विद्यार्थियों को जब परीक्षा में कोई सवाल पूछता हूँ तो मैं उनको ऐसा कहता हूँ कि सही जवाब मत देना, अपने दिमाग से जो निकले वो जवाब दो। तो मैं तुमको शून्य मार्क नहीं दूंगा कभी, तुम्हारा तर्क सुनूंगा, तुम्हारी कल्पना को मैं सुनना चाहूँगा। बच्चे होते हैं प्रयोगशील, विज्ञानी, नए नए प्रयोग करेंगे। सबसे पहला क्या करेंगे, वो हर चीज़ को तोड़ेंगे, है ना। तो रेने डेकार्ट, आपने नाम सुना है उनका? रेने डेकार्ट फ्रेंच फिलोसोफर, जिन्होंने अभी नया दर्शन हमें दिया। तो रेने डेकार्ट कहते थे कि किसी भी चीज़ को आपको सीखना है, समझना है, तो उसको तोड़ डालो, खुली कर डालो। मोबाइल फोन कैसे काम करता है तो पूरा तोड़ डालो। कार कैसे चलती है तो पूरी कार खोल डालो, है ना। अपन मत रखो तो आप सीख पाओगे। तो बच्चे की वृत्ति रहती है, मैं देखता हूँ कि कोई भी चीज़ उनके हाथ में देंगे तो वो खोल डालेगा, तोड़ डालेगा, है ना। तो एडवेंचरस एंड एक्सपेरिमेंटल। एंड सबसे बड़ी वृत्ति ये है, कैन टॉलरेट एनी अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी, कंफ्यूजन, इग्नोरेंस एंड सस्पेंस, जो मैं और आप सहन नहीं कर पाएंगे। पढ़ लीजिए इस विधान को। कितना समय बाकी है, जरा बोलते रहना। तो आप समझ लो कि ऑल चिल्ड्रन आर बोर्न लर्नर्स। इसमें से एक भी गुण आप में है क्या? मेरे में है क्या? नहीं है, क्योंकि वी हैव फिक्स्ड ब्रेन, फिक्स्ड वायरिंग, जबकि बच्चे का वायरिंग बदलता रहता है।
तो बच्चे का आदर आदर करो। अब लर्निंग पिरामिड, अमेरिका में शिक्षण छात्री थे एडवर्ड हेल, 1960 में इन्होंने बनाया। शिक्षा पद्धति दो प्रकार की होती है, एक पैसिव मेथड जैसे कि लेक्चर, इससे बच्चा कितना सीखता है, ओनली 5%। रीडिंग 10%, आप टेक्स्ट बुक दे दो, पढ़ के आओ घर से। ऑडियो विजुअल जो मैं बता रहा हूँ 20%, एंड डेमोन्स्ट्रेशन 30%। मुझे कार्डियक मसाज दूर से मुझे बोला गया था पहली बार, अगर बंद करके खड़े रहो और जो मैं करता हूँ वो देखो, मतलब कि डेमोन्स्ट्रेशन किया गया था माउथ टू माउथ ब्रीदिंग और कार्डियक मसाज का। तो मैं नहीं कर पाया ठीक से, लेकिन मैंने अपने टीचर को बोला सर मुझे करने दो एक बार, फिर मुझे आएगा। तो मतलब लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव टीचिंग मेथड, ग्रुप डिस्कशन। एक विषय दे दो आप और 10 बच्चों को बोलो साथ में बैठकर चर्चा करो अंदर और एक तथ्य बाहर निकालो। हम कई बार अपनी शिविरों में ये प्रयोग करते हैं, बच्चों को डिस्कस करने दो, उनको चर्चा करने दो, उनको निष्कर्ष पर आने दो, आप कुछ मत बोलो, आप उनके आजू बाजू घूमते रहो। तो ग्रुप डिस्कशन, प्रैक्टिस बाय डूइंग एंड टीचिंग अदर। जैसे कि मुझे खाना बनाना नहीं आता था, मैं आभारी हूँ कोरोना का कि 3 महीने तक मैं घर में रहा, तो मैंने अपनी धर्मपत्नी को बोला नहीं कि मुझे खाना पकाना सिखाओ, मैं खुद प्रयोग करता था। जो काम आप 10 मिनट में करते थे मैं 4-4, 5-5 घंटे में करता था। लेकिन लर्निंग बाय डूइंग, तो मैं सब कुछ करने लगा। तो लर्निंग बाय डूइंग, जैसे कि मुझे मेडिकल कॉलेज में ट्रीटमेंट सीखना था, ब्लड प्रेशर लेना सीखना था, तो हम किसी कम्युनिटी में क्लिनिक खोला, मैं वहाँ शाम को 6 से 8 काम करता था, वहाँ खुद करता था, कोई मुझे ब्लड प्रेशर सिखाता नहीं था, टेम्परेचर लेना सिखाते नहीं था, इस बीमारी में कौन सा दवा दूँ वो मुझे नहीं सिखाया गया था। तो लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिस बाय डूइंग एंड टीचिंग अदर। तो बच्चों को जैसे कि आप 5 सितंबर को एक दिवस मनाया जाता है, कौन सा दिवस है, शिक्षक दिन। मेरी स्कूल शारदा मंदिर स्कूल में एक नियम था कि 5वीं सितंबर को मुझे प्रिंसिपल बनाया जाता था, और प्रिंसिपल तो अपने ऑफिस में बैठे थे, मैं बोलता था नहीं मैं ऑफिस में नहीं बैठूंगा, मैं किसी क्लास में पढ़ाऊँगा, है ना, मैं पढ़ाऊँगा आपको वो विषय पढ़ाऊँगा। जैसे कि मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, तो मैं बोलता था कि मैं 10वीं कक्षा में पढ़ाऊँगा। समझे आप मेरी बात को? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए बोल रहा हूँ। एक विषय जैसे कि मेडिकल कॉलेज में हमारे बोर्ड में एक बार न्यूरोलॉजी में हमने 5 विषय बांट लिए कि निदान कैसे करेंगे कि इस व्यक्ति को न्यूरोलॉजिकल बीमारी है। तो बीमारी का निदान करने के लिए अलग अलग तरीके से कैसे निदान करोगे। जैसे कि कोई व्यक्ति चलकर आएंगे तो चलते हुए देखकर मैं तय कर पाऊंगा कि गेट कि क्या बीमारी है उसके अंदर, है ना, शराबी है वो या उसको स्मॉल ब्रेन का कैंसर है, क्या बीमारी है, तो चलते हुए देखकर। तो हम बच्चों ने अंदर एक दूसरे को सिखाया। तो टीचिंग अदर, तो आप देखिए कि सबसे अच्छी मेथड कौन सी होनी चाहिए, शिक्षक को छुट्टी लेनी चाहिए, है ना, बच्चों को अंदर पढ़ा, चाइल्ड टू चाइल्ड एजुकेशन, तो एक्टिव एंड पैसिव लर्निंग, इसका तफावत आप जरूर समझो। सबसे विवादास्पद विधान ये बोलूँगा कि मैं सभी स्कूलों को जलाकर राख कर देना चाहता हूँ। माफी मांगता हूँ प्रकाश भाई की और अंशोर भाई की। They should be the places to learn, not to teach. टीचर की जरूरत नहीं है। अब स्कूल में कैसा व्यवहार बच्चों के साथ किया जाता है जो गलत है, उसकी बात करता हूँ। मेरे समय में एक सजा की जाती थी, मुर्गी बनाई जाती थी, है ना, कमर से झुको, हाथ पैरों के अंदर डालो और कान पकड़ो, है ना। तो
नॉर्मल का कहना है कि बच्चे स्कूल में क्या सीखते हैं। फियर मैं देखता हूँ हमेशा कई स्कूलों में मैं अवलोकन करता हूँ कि अंदर प्रवेश करने की घंटी बजती है और छूटने की घंटी होती है। बच्चों को कौन सी घंटी पसंद आती है? छूटने वाली। अंदर जाते समय धड़कनें तेज हो जाती है। हमने प्रयोग किया है, वडोदरा में बड़ोड़ा हाई स्कूल के बच्चों पर प्रयोग किया था। हमने उनका ब्लड प्रेशर लिया, उनका पल्स रेट लिया, उनका रेस्पिरेटरी रेट और उनकी स्किन टेम्परेचर, गैल्वेटिक टेम्परेचर कहा जाता है, मेजर किया। तो जब प्रवेश करने की घंटी बजती थी, अब मेरा होमवर्क मांगेंगे, परीक्षा का परिणाम जाहिर करेंगे, तो बच्चे डरते थे। और जब छुट्टी की घंटी बजती थी तो जैसे कि रणछोड़ भाई मुझे बोल रहे थे, हमारे स्कूल में 2 सर्वेंट थे, भोड़ीदास और बापालाल। तो बापालाल का काम था छुट्टी की घंटी बजाने की और भोड़ीदास का काम था अंदर आने की घंटी बजाने की। तो बापालाल को मैं बोलता था कि तू मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि तू मुझे जेल से बाहर निकालते हो, है ना। क्योंकि बच्चों को डर डाला जाता है स्कूल में, है ना। इसके बदले मुझे बाग में भेजो, जंगल में भेजो, नदी किनारे भेजो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फेलियर लगातार मेरे कितने मार्क आएंगे, मैं पास होगा कि नहीं, है ना। गणित में मेरे कितने मार्क आएंगे, विज्ञान में मेरा क्या होगा, मैं 12th बोर्ड में पास होगा कि नहीं। तो डर से पढ़ाया जाता है, डर डाला जाता है, कंफ्यूजन। क्योंकि 2 शिक्षक अलग अलग बात करते हैं, विषय ही होगा, है ना, लेकिन 2 शिक्षक का तरीका अलग होगा। आपने अलग सिखाया, इन्होंने अलग सिखाया, मैंने अलग सिखाया, तो बच्चे के दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है, कौन सा सही है वो सही नहीं कर पाता है। और कोपिंग स्ट्रैटेजी, जैसे कि बच्चे ऐसी डरपोक डरावनी, मतलब कि स्कूल इज ए हॉरर प्लेस, है ना, हॉरर प्लेस है ना स्कूल। बच्चों का एक आप छोटा सा सर्वे कर लेना, हाउ मेनी ऑफ यू लाइक द स्कूल। मैं कई छोटे बच्चे को पूछता हूँ स्कूल तुमको पसंद है, तो माँ बाप बाजू में होने के कारण वो बोलते हैं मुझे बहुत पसंद है। फिर मैं माँ बाप को बोलता हूँ तुम बाहर चले जाओ, मैं बच्चे से दोबारा बात करना चाहूँगा। तब बच्चे बोलते हैं कि मुझे स्कूल नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नहीं जाना है वहाँ पर, है ना। तो बच्चा स्कूल जाने से अथवा परीक्षा में बैठने से रोकने के लिए कोपिंग स्ट्रैटेजीज क्या करता है, क्या करते हैं वो लोग? आपने कुछ अनुभव किए हैं? झूठ बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मेरा पेट दुख रहा है ना, मेरा सर दुख रहा है, मुझे कमजोरी लग रही है, मैं आज उठ नहीं पा रहा हूँ। कोपिंग स्ट्रैटेजी बच्चे, क्योंकि अगर आप मुझे शेर के पिंजर में डालोगे तो अंदर जाने से मैं इतना डरता हूँ कि अपने आप को बचाने के लिए मैं बहुत सारी झूठ बोलना तो बच्चे झूठ बोलना सीख लेते हैं। और ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है बच्चों में, बहुत सारी देखी गई है। अब अंतिम 2-3 बातें करके मैं पूरी करता हूँ। एजुकेशन सिस्टम बच्चों को क्या बनाता है? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मतलब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे, मार्क कैसे देंगे कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी। टिक मार्क कौन सा करेंगे? मैं जवाहरलाल नेहरू पर करूँगा, नरेंद्र मोदी पर नहीं करूँगा। तो आप मुझे बोलेंगे आपने गलत जवाब दिया। प्रोड्यूसर मतलब जो जवाब आप चाहते हो वो जवाब उनसे निकालना चाहते हो, तभी आप उनको मार्क देते हो। नहीं, थिंकर कि मैं देश को कैसी दिशा में ले जाना चाहता हूँ, समाज को कैसा बदलना चाहता हूँ, है ना, ऐसा सोचकर जवाब देना चाहिए। तो बच्चों को हमको बनाना चाहिए थिंकर, प्रोड्यूसर नहीं। उनको क्रैमिंग करना सिखाया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जितनी माहिती है 800 भर दे, फिर वो परीक्षा में बाहर निकल पाए। बच्चा डर जाता है और जवाब नहीं निकाल पाता है ठीक से, तो रियल लर्निंग नहीं होता। तीसरा है कि मुझे परीक्षा में सिखाया जाता है कि
कि तुमको 10 रुपया देकर मैं बाजार में बेचती हूँ, 5 रुपये की सब्जी ली, 10 रुपया दिया, तो तुमको कितना रुपया वापस मिलेगा? कितना मिलेगा वापस? 10 रुपया लेके गए, 5 रुपये की सब्जी ली आपने, दुकानदार को दिया, कितना वापस मिलेगा? ये तो क्लासरूम में सिखाया गया, लेकिन बच्चे को मुझे कैसे सिखाना चाहिए? चलो मेरी अंगुली पकड़कर स्कूल बाजार में आओ, सब्जी खरीदो, पैसा तुम देना और कितने वापस मिले, इसको कहेंगे रियल लर्निंग, रियल लाइफ सिचुएशन, है ना? तो मैं देखता हूँ कई बार कि कॉलेज में पढ़े हुए लोग वो मैनेजमेंट पढ़ते हैं, लेकिन अपने जीवन को मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना? बाकी उनको बोलो कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे व्यवस्था करोगे, कैसे संचालन करोगे, उसका तो जवाब दे देंगे, वो तो मॉडल है, लेकिन अपने जीवन का प्रबंधन को लोग ठीक से नहीं कर पाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग नाजुक निर्णय कभी नहीं ले पाते हैं। स्कूल में सिखाया जाता है कि भूल नहीं होनी चाहिए, ईश्वरता नहीं होनी चाहिए, मतलब कि अगर बच्चा नापास हुआ तो माँ बाप डांटेंगे, शिक्षक डांटेंगे, ये गलत है। फेलियर का ऑनरेबल एंड आंसर सेंटर, नॉट प्रॉब्लम सेंटर। आप अटपटे प्रश्न दो, उसको निकाल करने का उसको सिखाओ, नॉट आंसर सेंटर। मतलब कि तुम्हारा किसी से झगड़ा हुआ तो तुम क्या करोगे? मारोगे उसको, अथवा वकील को बुलाओगे, अथवा कोर्ट में जाओगे, पुलिस में जाओगे। ये तो आंसर सेंटर है, नहीं प्रॉब्लम सेंटर। मैं कैसे, मतलब कि स्कूल में सीखने वाला बच्चा अपनी वास्तविक जीवन में वो समाधान नहीं निकाल पाता है, तो ये शिक्षा गलत है बिल्कुल। मुझे लगता है कि आप इससे सहमत होंगे, क्योंकि सभी स्कूलों में परीक्षा लक्ष्य पढ़ाया जाता है। बच्चे बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग, कंपटीशन कितना बना दिया है हमने, स्पर्धा। तो आप देख रहे हो कि मध्य प्रदेश में कितने बच्चे हर साल आत्महत्या, 10 साल से छोटी उम्र वाले बच्चे सुसाइड नहीं करते, डिप्रेशन में नहीं होते। लेकिन गुजरात में अभी मैं देख रहा हूँ कि लगभग 20 बच्चे 10 साल से छोटी उम्र वाले सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल से परेशान है। ईर्षा, अंदर अंदर, मटीरियल हैप्पीनेस, क्रेविंग बोल सकते हैं, एरोगेन, ये विद्या हमको एरोगेन बनाती है, घमंडी बनाती है, गलत है। इनसिक्योरिटी, मैं पास तो हो गया लेकिन मुझे नौकरी मिलेगी, आमदनी कितनी मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा, लड़की मिलेगी, मेरे साथ कोई शादी करेगा, मेरा जीवन शादी जीवन लंबा चलेगा। इनसिक्योरिटी, डिससैटिस्फैक्शन एंड डिप्रेशन, तो ये बाय प्रोडक्ट ऑफ लर्निंग है अकॉर्डिंग टू जॉन हॉल। अब अंतिम 2 बातें और फिर मैं पूरा करता हूँ। वाई स्कूल लर्निंग इज अ बर्डन फॉर चिल्ड्रन। अभी एक लड़की मेरे पास बताने को आई थी 2 दिन पहले, यहाँ पर दुख रहा था लगातार। तो मैं उसको पूछ रहा था कि तुमको क्या कारण लगता है? तो सर मेरे स्कूल बैग बहुत हेवी है। तो स्कूल बैग के कारण आप, ये बाद में बात करता हूँ, वो लोग स्कूल वर्क हमको पढ़ाई भाषा में पढ़ना पड़ता है। बच्चों को गुजराती आता नहीं, हिंदी आता है, इंग्लिश मीडियम, गुजराती माध्यम की स्कूल सब बंद होने लगी ना अभी। तो मुझे जो मेंटल मैप बनाना है वो मेरी खुद की भाषा में, मातृभाषा में बनाना है। लेंथी कोर्सेज, ओवरक्राउडेड क्लासरूम। आपके क्लास में कितने बच्चे होते हैं? कितने? 40। आइडियल नंबर शुड बी लेस देन 20, क्योंकि एक व्यक्ति से मैं बैठकर पर्सनल संपर्क से बात कर सकता हूँ। ट्यूशन बहुत खतरनाक है, मेरे ज़माने में नहीं था। अब तो हर बच्चों को ट्यूशन में जाना पड़ता है। कॉन्सेप्ट स्कूल कितना सारा हो गया। और बड़ौदा में 3 ट्यूशन चलता है, जो गवर्नमेंट स्कूल, बड़ौदा हाई स्कूल, सबसे उन्होंने धंधा कर दिया है कि तुम्हारे बच्चों को हमारे यहाँ रख दो, हम पूरा पढ़ा देंगे। संस्थाओं का नाम देना नहीं चाहूँगा। IIT एजुकेशन देती है वो लोग। होमवर्क कितना देते हो आप?
एग्जामिनेशन एंड इवेल्युएशन, कॉम्पिटिशन एंड समाज की अपेक्षाएं, ये पूरी शाला के शिक्षण को बहुत लोग बनाती है। इससे बच्चों को बाहर निकालिए। तो इसके ऊपर एक अभ्यास किया गया है कि ओवरलोडेड बैग से कितनी समस्याएं होती है, कितनी तकलीफें हो सकती है। देखिए आप बच्चे की चाल बदल जाती है। कई बार स्कूल में रखने के बाद भी बच्चा ठीक सीधा नहीं चल पाता है, बहुत सारी तकलीफें हैं। मैंने 2 बच्चों को डिस्क प्रॉब्लम भी देखे हैं हैवी बैग के कारण। तो आपके स्कूल में कितनी होनी चाहिए? बच्चे की वजन की 10% से ज़्यादा नहीं। अमेरिकन ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन का ये सजेशन है। मतलब कि 40 किलो का बच्चा होगा तो 4 किलो की बात बैग होनी चाहिए, 7 किलो का होगा तो 6 किलो की होनी चाहिए, नॉट मोर देन 10%। तो बच्चे का वजन करने के लिए वजन काटा रखा जाता है, लेकिन स्कूल बैग का वजन करने के लिए काटा रखो। तो वजन कम करने के लिए आप क्या करेंगे? लिमिट द नंबर ऑफ पीरियड इन अ डे। जैसे कि मेरे ज़माने में नियम था, हमको कुछ भी लेके जाना नहीं पड़ता था। हमको एक छोटी सी स्लेट लेके जाना पड़ता था, बस कोई किताब लेके जाना नहीं पड़ता था। मेडिकल कॉलेज में मैं पढ़ता था तो मुझे एक नोटबुक लेके जाना पड़ता था, कोई टेक्स्ट बुक नहीं, बस एक नोटबुक लेके जाने का। टीचर बोलते थे, तब तो पावर पॉइंट भी नहीं थे, वो प्रोजेक्टर भी नहीं था, वो खड़े खड़े बोलते थे, हम लिखते थे, बस। मतलब कोई बोझ होता नहीं था, तो बहुत खुशी खुशी जाते थे। मेक ब्रिंगिंग टेक्स्ट बुक डेली इन स्कूल अननेसेसरी। मैं शिक्षक हूँ, मैं अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि मैं अगर आपको योग फिलोसॉफी सिखाता हूँ, आपको कोई किताब लाने की जरूरत है, मैं भी नहीं लाऊंगा। मैं बोलूँगा, आप सुनोगे, आप लिखोगे और हम बहस करेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे। एक विवादास्पद मुद्दा मैं बीच में रख देता हूँ, फिर उनको उकसाता हूँ और उनको बोलता हूँ, बोलो अभी तुम। डू नॉट प्रमोट यूज ऑफ नॉन टेक्स्ट। मैं सबसे खतरनाक समझता हूँ नवनीत प्रकाशन। और कोई नाम है कोई अभी? क्योंकि अभी मैं बहुत संपर्क में हूँ। नवनीत प्रकाशन बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बने ही कि बच्चों की हालत खराब कर दी। मेरे ज़माने में नहीं हुआ करती थी। स्टॉप गिविंग होमवर्क ऑल टुगेदर। होमवर्क मतलब माँ बाप बच्चों को घर से कुछ काम यहाँ लेके जाओ, मेरी सब्जियाँ काट के ले आना, ऐसा नहीं कहते। तो आप अपना होमवर्क घर पे क्यों देते हो? आपके सामने ही 15 मिनट बैठ के कराओ, आधे घंटा बैठ के पढ़ाओ। आज का समय रहेगा हमारा होमवर्क करने का। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, आप पूरा कर लो। अगर कोई तकलीफ है तो मुझे पूछो, अथवा अंदर पूछो। घर पे होमवर्क कभी मत देना। आप नोट्स दे सकते हो, जैसे कि मेरे विद्यार्थियों को मैं नोट्स बना कर देता हूँ इन राइटिंग। तो होमवर्क से क्या नुकसान होता है? मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम। कई बच्चों को मैंने हेडेक देखा है। अपनी खुद की लड़की को मैथमेटिक्स के टीचर इतना होमवर्क देते थे कि रात को 12 बजे तक वो पूरा नहीं कर पाती थी, फिर सो नहीं पाती थी, सर दर्द होता था, उल्टी भी करती थी। तो मैं शिक्षक के जाके लड़ा। तो हेडेक, फेंटिंग, गिडीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, एब्डोमिनल प्रॉब्लम, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जॉइंट प्रॉब्लम, मेंटल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम। होमवर्क से बहुत सारी तकलीफें होती है, तो बच्चों से इनसे मुक्त करो। होमवर्क कभी मत देना। एजुकेशन सिस्टम, आइंस्टाइन को पढ़ लीजिए आप। ये सब परीक्षा आती है, ये शिक्षक परीक्षा लेने वाले हैं। सबको क्या पूछा गया है? सबको पेड़ पर चढ़ना है। जो जल्दी चढ़ेगा पहला नंबर आएगा, जो नहीं चढ़ेगा वो नापास हो जाएगा।
सही परीक्षा है, परीक्षा का अंदाज लगाना चाहिए कि गलत है? नहीं, परीक्षा होनी ही नहीं चाहिए कभी। अभी आपके लिए अंतिम बात और कोई बुरा करता हूँ, आप पढ़ लीजिए, फिर आपके बर्तन व्यवहार में बच्चों के साथ कितना फर्क लाना है उसकी बात कर लेता हूँ। नो फिजिकल पनिशमेंट, नो इंसल्टिंग डिरोगेटरी रिमार्क, रिस्पेक्ट देम। क्योंकि मुझे विधान सिखाया गया, टीचर एंड टॉट टुगेदर क्रिएट लर्निंग। मैं इसलिए सीख पाया कि मेरे विद्यार्थी हैं, वो मुझे सिखाते हैं, मैं आपको सिखाता हूँ, ये अरस परस होता है। तो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर। So don't insult them. Don't ask them to shut up. Don't preach them. Don't shout or yell at them. Treat them with kindness. जैसे कि कुछ शब्द मैंने बचपन में बहुत सुने हैं, इसकी छाप बन जाती है दिमाग पर। इससे बच्चे की आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में कमी हो जाती है। आप उपयोग करते हो क्या इन शब्दों का? मत करना, क्योंकि इसकी छाप बच्चे को 10 बार बोलोगे तो डफर हो, मतलब बच्चा स्वीकार कर लेगा। इट इज कॉल्ड पावर ऑफ सजेशन। सबके सामने मैं खड़ा करूँगा और बच्चे को बोलूँगा तो इडियट हो, तो बच्चा मान लेगा मैं इडियट हूँ, और फिर जीवन भर उसको ऐसे ही बच्चे भी आत्महत्या कर लेते हैं। क्योंकि माँ बाप बच्चे को जब बोलते हैं कि तुम बिल्कुल कदरू पे हो, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, तुम इडियट हो, तो बच्चा स्वीकार कर लेता है, लेबल बना देता है, और फिर वो बच्चा आत्महत्या कर लेता है। तो मानसिकता में ऐसी नुकसान हो सकती है। तो ये संदेश आपके लिए है, पढ़ने के लिए। दिमाग से पढ़ा हो, लेकिन दिल से भी पढ़ा हो। Give a vote of thanks to Dr. Kiran Shinglod sir. We are inspired by your ideas, and also we have now thought-provoking sessions. Yes, are we doing good, or we should change our classroom teaching methods? And so thank you for giving your valuable time, and we are thankful to you that you. We are thankful for such an engaging session, a good question answer and debating session that made us truly think that are we doing good, are we doing better, or we should change. Thank you, sir.